Assalamualaikum. Welcome to my channel, Amna's number one channel. And I have another channel that was before 2 years, Amna's channel. But I have lost ID and password of that. Not ID. I have lost password of that channel. So I'm going to upload new videos on that channel. And nowadays I'm in Saudi Arabia, and right now I don't have laptop or whiteboard, any other thing. So that is my first lecture related to computer, basics of computer. Basics of computer. First of all, I want to tell you a definition of computer. Computer is an electronic machine which takes input from input devices, process it, and give result to the user. Basically, this is the main function of the computer, that it takes input, process it, and give result to the user. A computer is a machine, right? Computer is a machine which process or work on data which user give to the computer, right? And from the beginner to the master level, or to the big projects, computer work on that rule or that criteria, that user give data, and CPU process on it. CPU process on that data and give result on the base, depends on the input, right? If we talk about from the beginners, for example, you have CPU, keyboard, mouse, and monitor, right? And you give input to the computer from the keyboard and mouse, understand? And CPU, that is processing device, and it process data, and after processing it give a result to the computer, to the user on the screen, that is monitor. Input give uh, by the user from the input devices, right? And processing is done by the CPU, and output is done by the output devices. Input and output devices may be changed for different input. For example, if you give data or text data, then input device will be keyboard, right? If you give any image, videos, anything, then you should use camera. And if you scan any data, then scanner is the input device. But processing device is the only one, that is CPU. And output device may be changed for different output, depends on the output, right? For example, if you take print, then you should use printer. Printer will be output device. If you want to see any data on the monitor, then monitor will be the output device. Monitor is the must. Now going to the definitions. Input, any data which we give to the computer for processing is input. Input may be text, image, visual. Visual means video and audio, videos or audio etc, right? कोई भी डेटा जो आप कंप्यूटर को देते हैं प्रोसेसिंग के लिए, वो इनपुट होती है। इनपुट कोई भी आप टेक्स्ट दे सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट है, ठीक है। आप टाइप करेंगे, इमेज पिक्चर हो जाएगी, वीडियो ऑडियो वट एवर यू वॉन्ट टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर। प्रोसेसिंग, next going to the processing computer process data by the CPU. CPU is the only device for processing, right? Input and output devices may be changed for different input types, but processing device is the only one, which is CPU. processing device change नहीं होगी, वो CPU ही होगी, ठीक है।
processing CPU receives data from the input devices. After processing, it transfers data to the output devices. Output devices are monitor, printer. If you receive voice output, for example, you want to listen any music, etc., then speaker will be the output device, right? From speaker you can listen any audio. Output, any data which we get from the CPU after processing is output, or result after processing is output. It may be text, image, video, audio, etc., right? Understand? And now think about the input, just think about the devices which work like computer. For example, calculator, right? Just think a moment. You give data to the calculator. आप कैलकुलेशन के लिए दें मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, whatever. You give data from the keyboard, जो उस पर नंबर्स लिखे होते हैं, आप उससे इन डेटा देते हैं, वो प्रोसेसिंग करता है और फिर आपको आउटपुट शो होती है, ठीक है? ये भी एक क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, कैलकुलेटर, राइट? अंडरस्टैंड? अच्छा, अब मैं लेक्चर को थोड़ा सा सम अप कर देती हूँ. बेसिक्स ऑफ द कंप्यूटर जो बेसिक्स हैं वो इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट होती है. और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चेंज हो सकती हैं डिफरेंट टाइप्स के लिए, डिफरेंट इनपुट्स के लिए. फॉर एग्जांपल, अगर आप टेक्स्ट इनपुट दे रहे हैं, आप टाइपिंग कर रहे हैं, तो आप कीबोर्ड से करेंगे, ठीक है? इनपुट डिवाइस क्या हो जाएगी? कीबोर्ड हो जाएगी. अगर आप कोई वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा? माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस होगी, ठीक है ना? और आउटपुट डिवाइसेस भी डिफरेंट आउटपुट्स के लिए चेंज होती हैं. अगर आप टेक्स्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई फाइल बनाई है, कोई सीवी बना रहे हैं, कोई भी बुक लिख रहे हैं, ठीक है? तो वो आपने टाइप की ना, तो टाइपिंग के लिए आपने क्या यूज़ किया? कीबोर्ड यूज़ किया, ठीक है? उसके बाद जब आप उसको प्रिंट आपको चाहिए तो आप आउटपुट डिवाइस का यूज़ करेंगे? प्रिंटर. लेकिन सीपीयू तो सेम ही रहेगा. सीपीयू जो प्रोसेसिंग डिवाइस है वो सेम ही रहती है, ठीक है? वो सीपीयू ही रहेगा. ये आप लोगों ने याद रखना है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस डिफरेंट इनपुट्स के लिए और आउटपुट के लिए चेंज हो सकती है. डिफरेंट टाइप्स के लिए यूज़ हो सकती है. इनपुट आउटपुट की टाइप्स के लिए जैसे अगर आपको टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो जो भी चाहिए तो उसके लिए आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चेंज कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन सीपीयू एक ही रहेगा. फॉर एग्जांपल देखें, अगर आपको स्पीकर के बगैर भी आप काम कर सकते हैं, आप प्रिंटर के बगैर भी काम कर सकते हैं. आपके पास मस्ट क्या चीज़ होनी चाहिए बेसिक काम करने के लिए? कीबोर्ड, माउस, सीपीयू एंड मॉनिटर, ठीक है? बाकी जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो आप डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए, डिफरेंट पर्पस के लिए आप ऐड कर सकते हैं. स्कैनर, प्रिंटर, वो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हो तो तभी आप कंप्यूटर पे काम करेंगे, राइट? वो जब आपको रिक्वायरमेंट होगी आपकी इनपुट आउटपुट की बेसिस पे, आप तब उसको ले सकते हैं, तब आप उसको अपने कंप्यूटर में के साथ सीपीयू के साथ अटैच कर सकते हैं. सीपीयू मेन डिवाइस है, ठीक है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है मतलब कि ये जो तमाम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो इसके साथ अटैच होती हैं. प्रोसेसिंग डिवाइस है, इसमें डिफरेंट जो मदरबोर्ड, तमाम जो डिवाइसेस होती हैं, सी डी रोम, यूएसबी, ऑल द अदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उसकी केबल्स इसके साथ अटैच होती हैं, ठीक है? और नेक्स्ट देखें, आपके इनपुट, कोई भी डेटा जो आप कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट होता है. इनपुट टेक्स्ट हो सकती है, इमेज, विजुअल, वीडियो, ऑडियो, वटेवर, जो भी आपको डेटा चाहिए. अगर आपने बुक टाइप करनी है तो आप टेक्स्ट इमेज देंगे, ठीक है? सॉरी, टेक्स्ट इनपुट देंगे, तो उसके लिए आपको कीबोर्ड चाहिए. अगर आपको कोई ऑडियो रिकॉर्ड करनी है, वीडियो रिकॉर्ड करनी है, तो आप उसके लिए कैमरा यूज़ करेंगे, माइक्रोफोन यूज़ करेंगे, ठीक है ना? लेकिन आपके पास प्रोसेसिंग डिवाइस, ये आपने मस्ट याद रखना है. बहुत से जो बोर्ड की जो क्लासेस होती हैं 9-10 की, उनको भी नहीं पता होता कि प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी होती है. तो ये आप लोग बेसिक्स स्टार्टिंग में याद रखें कि प्रोसेसिंग डिवाइस का अगर आपको कोई कंफ्यूज करने के लिए भी बोले ना
कि प्रोसेसिंग डिवाइस सीपीयू के अलावा और कौन सी है, तो आपने बताना है कि प्रोसेसिंग डिवाइस ओनली वन है, दैट इज़ सीपीयू, राइट। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि प्रोसेसिंग डिवाइस सिर्फ एक ही है जो कि सीपीयू है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए, डिफरेंट इनपुट्स के लिए, आउटपुट्स के लिए चेंज हो सकती हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया है, प्रिंट करने के लिए प्रिंटर आपको चाहिए होगा, स्कैनर चाहिए होता है, स्कैनिंग करने के लिए इनपुट डिवाइस है, ठीक है। और आउटपुट आपने प्रोसेसिंग के बाद जो डेटा मिलता है वो आउटपुट होती है, वो स्क्रीन पे शो होती है, मॉनिटर पे शो होती है। अगर आपने प्रिंट लेना है तो आप उसका प्रिंट ले सकते हैं। और तमाम जो डेटा है वो कहाँ पे सेव होता है, कहाँ पे सेव होता है, जस्ट थिंक अबाउट इट, स्टोरेज डिवाइसेस में, ठीक है। स्टोरेज डिवाइसेस जो आपकी कंप्यूटर के अंदर यूज़ होती है वो हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क में तमाम ड्राइव्स होती हैं, सी डी ई ड्राइव्स होती हैं। सी में मोस्टली जो विंडो आप लोग करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, सी ड्राइव में वो इंस्टॉल होती है। बाकी में आपका डेटा होता है, और जो भी डेटा होता है वो आप अपनी मर्ज़ी से सेव कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, फोल्डर्स बना सकते हैं इजीली एक्सेसिबिलिटी के लिए। जैसे आपके घर में 3-4 पीपल्स हैं, हर एक ने अपना अपना डेटा रखा हुआ है, तो वो एक एक फ़ोल्डर बना लें जिसमें वो अपनी मर्ज़ी का डेटा रख सकते हैं। फाइल्स, एक में फ़ाइल्स रख लें, दूसरे में आप ऑडियो वीडियो जो भी आपको सॉन्ग्स नात वगैरह सुननी है वो आप रख लें। इस तरह से आप डेटा को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी की बेस पे रेडी करूँगी, और लैपटॉप एंड वाइट बोर्ड भी मैनेज करने की कोशिश करूँगी। वो दूसरी आईडी पे तो मैंने उसी तरह से दिए हैं, लैपटॉप और वाइट बोर्ड से, लेकिन यहाँ सऊदीया में मैं ले के नहीं आई हूँ, तो फर्स्ट लेक्चर मैंने यहाँ से इस तरह से दे दिया है। होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर एंड try to understand and think about the input output devices, input and output, right। input and output devices का भी डिटेल से मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, राइट। इस लेक्चर में आपने इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट को माइंड में रखना है, सोचना है कि जो भी तमाम डिवाइसेस हैं वो कौन सी इनपुट है, आउटपुट कौन सी है, प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी है। या जैसे देखें, अगर बुक है आपके पास, बुक में टेक्स्ट आपने सारा डेटा टाइप किया है बुक के लिए, वो आपने किस तरह से टाइप किया है, कीबोर्ड से टाइप किया है। प्रोसेसिंग के बाद तमाम जो आपने सेटिंग वगैरह की है, पेज बॉर्डर वटेवर जो भी, ठीक है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जो भी आपने बुक की सेटिंग की है वो प्रोसेसिंग हो जाती है। और फिर उसके बाद जो आपको फाइनल फॉर्म में बुक मिलती है वो आपके पास क्या होती है, आउटपुट है, ठीक है। और इसी तरह से न्यूज़पेपर्स, वो भी आपके पास न्यूज़पेपर जब लिखी जाती है तो वो आपके पास क्या है, इनपुट है, ठीक है। जब आपके पास फाइनल फॉर्म में आ जाती है, मॉर्निंग में जब आपके पास आती है तो वो क्या होती है, आउटपुट होती है। इसी तरह से ये देखें जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में ये पेज एम्प्टी था, खाली था, ठीक है। अब जब इसमें मैंने टेक्स्ट लिखा है तो ये मैंने क्या किया, इनपुट किया है। इनपुट मीन्स कि इनपुट, आप कुछ डेटा इन कर रहे होते हैं, पुट, इनपुट, राइट। और आउटपुट में आप शो कर रहे हैं। इनपुट में आप डेटा इन करेंगे, ठीक है, पेज पे एंटर करेंगे, और आउटपुट में आप वो डेटा शो होगा। अंडरस्टैंड, आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।